So, let's begin with the today's topic, which is very much interesting again. So, we have a next topic which is to be read here, which is the cross validation in the machine learning. And let's begin and understand that what exactly the machine learning is here. And we have already gone through the different type of machine learning techniques are there. So, we have gone through that supervised machine learning and unsupervised machine learning, and the third one was a reinforced machine learning. The three broad categories, and we have already talked and discussed about that. Now the target is to move on in another direction, which is the cross validation of machine learning. Validation method क्या होता है? In machine learning, we could not find the fit the model or training data. We cannot say the model will work accurately for the real data set. For this, we must assure that our model got the correct pattern from the data and it is not getting up too much of noise. For this purpose, the use of cross validation technique is used. It means the thing is here, आपने अपना कोई मॉडल क्रिएट किया और उस मॉडल क्रिएट करने के बाद उसको सर्टेन टाइप ऑफ डेटा के साथ में हमने ट्रेनिंग दे दिया. And then after you cannot say this model is absolutely ready to launch in a market. मतलब real time basis पर application basis पर इसको directly भेज दें. ऐसा direct हम नहीं करते. तो इस situation में what we do? इन situation में हम क्या करते हैं? पहले उसका validation करते हैं. तो validation is basically one type which is called as a cross validation. So cross validation is a technique used in machine learning to evaluate the performance of a model on unseen data. जो मॉडल आपने बनाया है, जिस मॉडल को आपने ट्रेन किया है, उस मॉडल को आप अनसीन डेटा के साथ में सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं. It involves dividing the available data into multiple folds or subsets, using one of these folds as a validation set, and training the model of a remaining fold. This process is repeated multiple times, each time using a different fold as a validation set. Finally, the result of each validation step are averaged to produce more robust estimate of the model's performance. तो क्या किया था प्रोसेस वैलिडेशन में? इस प्रोसेस में हम अननोन डेटा सेट आप उसको प्रोवाइड करते हो और अननोन डेटा के अगर चेक करते हैं कि मॉडल आपको डिजायर्ड आउटकम दे रहा नहीं है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम ईच टाइम using a different fold as a validation set. Finally, the result for which validation steps are averaged to produce the more robust estimate the models for. इस वहाँ पे मॉडल के परफॉर्मेंस को फ्रीज कर देते हैं कि हाँ अब हमारा मॉडल काम करता है. Our main purpose of cross validation is to prevent the overfitting, which occurs when the model is trained too well on the training data and performs poorly on the unseen data. इसको ओवरफिटिंग के इश्यूज कहते हैं. जब आपने अपना मॉडल बनाया है, जो भी आपने मॉडल बनाया है, वो मॉडल आपका किसी सर्टेन डेटा के लिए आधा जब आप उसको ट्रेनिंग दे दिया अपने ट्रेनिंग में तो इट वाज डूइंग गुड, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग में कोई अनसीन डेटा दिया, अननोन डेटा दिया, इट्स नॉट परफॉर्मिंग. तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. By evaluating the model on the multiple validation set, cross validation provides a more realistic estimate of the model's generation. तो इसमें से जो क्रॉस वैलिडेशन है, जो क्रॉस वैलिडेशन मेथड हमारा सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव मेथड है, हम इसको यूज करते हैं. दैट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द वेल ऑन न्यू अनसीन डेटा. ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें हमारे अनसीन डेटा को भी देना है अपने मॉडल को, और मॉडल अगर हमारे अनसीन डेटा पे रिस्पॉन्स कर देता है तो ठीक है. जैसे सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने किसी सिस्टम को ट्रेन कर दिया टू डिटेक्ट द एनिमल. अब एनिमल्स आपने उसको 100 तरीके के एनिमल्स दिखाए थे, लेकिन 101 एनिमल आपने नहीं दिखाया था. तो लेकिन एनिमल्स के फीचर्स तो उसको बता दिए थे. तो जब वो इस फीचर को लेके आप किसी जंगल में जाते हैं और जाके चेक करते हैं, अपने मॉडल को चेक करते हैं, तो व्हाट आउटपुट इट गिव्स. So the output it gives is called as basically a testing of a data, and that is called unseen data. वो आपका unseen data हो जाएगा. So there are several types of cross validation techniques, including k-fold cross validation, leave one out cross validation, and stratified cross validation. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन तरह के क्रॉस वैलिडेशन मिलेंगे यहाँ पर. k-fold, leave one out cross validation, and stratified cross validation. The choice of technique depends on the size and nature of the data as well as the specific requirement of the data. So basically we are starting with the now the cross validation. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन की, how we are going to work with this one. तो क्रॉस वैलिडेशन में आप चेक करिए, please check it out that how the cross validation is working. किस तरीके से हमारा क्रॉस वैलिडेशन काम करता है शुरू करते हैं. So let's move on with this one. So cross validation is a technique. सबसे important है ये cross validation technique. Cross validation is basically a technique in which we train a model using the subset of the data set and then evaluate using the complementary subset of the data set.
यानी कि क्रॉस वैलिडेशन में आपके पास में जो भी आपके पास में रॉ डेटा फॉर्म आया हुआ है, उस रॉ डेटा फॉर्म में से आप एक सबसेट क्रिएट करते हैं, उस सबसेट की मदद से मॉडल को ट्रेन करते हैं पहले। अ पार्ट ऑफ अ डेटा सेट इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल। एक डेटा का एक हिस्सा यूज किया जाता है मॉडल को ट्रेन करने में। और सेकंड क्या किया जाता है, सेकंड पार्ट है, वहां पर क्या किया जाता है, इससे एक ही सबसेट जो होता है जिसमें उससे को टेस्ट किया जाता है, यानी कि इवैल्यूएट किया जाता है। अच्छा, 3 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जो आपको याद रखने। रिजर्व सम पोर्शन ऑफ सैंपल डेटा सेट। सबसे पहले पूरे डेटा सेट को ट्रेनिंग में यूज मत कीजिए, उसमें से कुछ डेटा सेट को आप रिजर्व करिए। यूजिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट टू ट्रेन मॉडल। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सर्टेन डेटा था, डेटा में आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज थी, तो थाउजेंड ऑफ वैल्यूज का मतलब हो गया कि आपने थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज में 800 700 के आसपास यूज कर ली, इसलिए 800 700 आप यूज कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग के पर्पज से, एंड रिमेनिंग आपने रिजर्व कर ली। अब जो आपने रिजर्व किया हुआ था, जो भी पूल आपने रिजर्व किया था, उस रिजर्व पूल की मदद से आप क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे और टेस्ट करेंगे अपने मॉडल को। मेथड्स क्या है क्रॉस वैलिडेशन के, उनको समझिए। Validation in this method, methods of सबसे पहले simply validation this method will perform 50% of the given data set and rest 50% is used for the testing purpose। जब हम केवल validation की बात करें तो 50% डेटा इसी है, 50% ऑफ डेटा यूज किया था ट्रेनिंग के लिए, 50% डेटा यूज किया था टेस्टिंग के लिए। The major drawback of this method is that we perform training on 50% of data set, it may possible that the remaining 50% of data set contains some information। अब हुआ क्या, इसमें एक छोटी प्रॉब्लम आने लगी। आपने डेटा सेट कलेक्ट किया, मान के चलिए आपने 1000 का डेटा सेट कलेक्ट किया, 50% यानी कि 500 के आसपास आपने डेटा यूज कर लिया इसमें ट्रेनिंग पर्पज। तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इतना बड़ा लार्ज डेटा सेट में से आपने केवल 50% यूज किया, 50% में को जो आपने छोड़ दिया, उससे हो सकता था कि उसको और अच्छे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती, और वो ट्रेनिंग और फीचर्स मिस हो गए। जब वो ट्रेनिंग और फीचर्स वहाँ पे मिस हो गए, तो इसका मतलब है कि उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास में किसी बच्चे को सिखाने के लिए पूरे एबीसीडी के लेटर्स थे सारे के सारे, और अमंग देम आपने एबीसीडी के सारे लेटर्स को सिखाया नहीं, और 50-60% पे आपने काम चला लिया, तो उसकी लर्निंग की कैपेबिलिटीज थोड़ी चैलेंज हो जाएगी। इसलिए सो विच आर लीविंग व्हाइल ट्रेनिंग अ मॉडल दैट इज हायर बाइस, तो हायर बाइस हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड कहलाता है यूसीवी। यूसीवी का मतलब होता है कि लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। और यूसीवी में आप क्या करेंगे, you perform training on the whole data set but leaves only one data point of available data set, leave one out क्रॉस, केवल एक ही डेटा सेट आप छोड़ेंगे, and then iterate for each data points। It has some advantage as well as a disadvantage as well। अब हमने पूरे डेटा में से केवल एक ही डेटा सेट को ऐसा है जिसको छोड़ा है, जिसको टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, और उसको अलग अलग कोरिलेशंस के साथ इटरेट करेंगे अलग अलग तरीके। An advantage of using this method, we can make use of all data points and hence it is a low bias। मतलब वो हाई बाइस हो जाता था। हाई बाइस में क्या होता था कि आपको ट्रेनिंग का तो मौका मिला नहीं, जब आपको ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला तो इसका मतलब आपका डेटा प्रॉपरली यूज नहीं हुआ ट्रेन करने में। तो ये प्रॉब्लम तो आ रही थी फर्स्ट वाले में, जैसे वैलिडेशन टेक्निक की। सेकंड वैलिडेशन में जो हम यूज सीवी में बात कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें जो यूज सीवी वाला है उसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं, उस मेथड में ये लो बाइस हो जाएगा। क्यों, एक ही डेटा सेट पॉइंट यूज किया है टेस्टिंग के पर्पज के लिए, बाकी की बाकी 90% डेटा के जितना भी सारा डेटा वो सारा का सारा यूज किया है ट्रेनिंग पर्पज से, तो ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। The major drawback of this method is that it leads to a higher variation of the testing model, and we are testing against one data point। आप टेस्टिंग केवल एक ही टाइप के डेटा से कर रहे हैं, अब आपने तैयारी तो बहुत सारी कर ली, लेकिन केवल टेस्ट एक ही चीज करा रहे हैं, तो यानी कि उसकी जो टेस्टिंग हो रही है वो टेस्टिंग केवल एक ही डेटा पॉइंट पर हो रही है, इसकी वजह से उसका टेस्टिंग आउटकम ठीक नहीं है। तो दोनों है, ट्रेनिंग आउटकम है, उसका टेस्टिंग आउटकम। इससे क्या होगा, इससे उसका टेस्टिंग आउटकम ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। So if the data point is an outlier and it can lead to a higher variation, another drawback is takes you a lot of execution time and features over the number of data points। फिर टेक्निक बनाई गई के फोल्ड। अब नेक्स्ट टेक्निक जो डेवलप की गई वो की गई के फोल्ड। इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू द के नंबर ऑफ सबसेट्स, देन वी परफॉर्म ट्रेनिंग ऑन ऑल द सबसेट्स बट लीव वन के1 सबसेट। तो के फोल्ड में हम क्या कर रहे हैं, के फोल्ड में हमने उसके भी सबसेट्स बना दिए डेटा सेट के, और के नंबर में उसको डिवाइड कर दिया, तो एक परसेंटेज यूज कर दिया जिसको हमने नाम दिया के।
तो अब हम जब उसकी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वी परफॉर्म ट्रेनिंग ऑल द सबसेट बट लीव के माइनस वन। हर बार एक बार के माइनस वन को हम छोड़ देंगे फॉर इवैल्यूएशन ट्रेनिंग मॉडल। इन दिस मेथड इटरेट के टाइम्स विद द डिफरेंट सबसेट। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया गया था, डायग्राम बिलो शोन एन एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग सबसेट एंड इवैल्यूएशन सबसेट जनरेटेड इन के फोर क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या करेंगे, वी हैव टोटल 25 इंस्टेंस, 25 इंस्टेंस है ये वाली, है ना, ये डेटा सेट। In the first station, we use the first 20% data for evaluation, remaining 80% data for 20% डेटा यूज किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए और रिजर्व पूल में ले लिया आपने। 80% डेटा दिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग एंड 5 to 25 फॉर ट्रेनिंग। अब 80% फॉर ट्रेनिंग में यूज किया जा रहा है, इसी तरीके से 1 to 5% हो गया टेस्टिंग का, 5 to 25 के रेशियो में चला गया ट्रेनिंग। तो अब भाई ये पूरा पूरा पार्ट हो गया ना। तो अब 25 इंस्टेंस थे तो केवल 25 इंस्टेंस में भी 20% आपने ले लिया, 20% का 2.5 हो गया। 25 टोटल इंस्टेंस थे उसमें 25 में से 1 से 5 के लिए टेस्ट किया, 5 से 25 के लिए आपने इसकी ट्रेनिंग कर दी। While in second iteration we use the second subset of data। अब दूसरे सबसेट यूज किया, बजाय इसके 1 to 5 के 5 to 10 यूज कर लिए, बाकी से ट्रेनिंग करा दी। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, पूरा का पूरा हो गया। पहले ये यूज कर दिया ट्रेनिंग के लिए, ये यूज कर लिया टेस्ट के लिए, तो ये सबसेट शिफ्ट कर दिया, तो ये सबसेट शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट हम शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब हम ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ट्रेनिंग करते वक्त अलग अलग सबसेट्स में ट्रेनिंग हो जाएगी और वैलिडेशन भी होगा, वो भी अलग अलग सबसेट्स पे हो जाएगा। ये बेनिफिट इससे ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ये फोल्ड का एग्जांपल था, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ। ये सब कंटेंट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कंपैरिजन ऑफ ट्रेन टेस्ट, तो ये आपको समझ में आ गया हमारे इस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है, टोटल ट्रेनिंग के इंस्टेंस कितने, 25, ये डिसाइड कर लिया 5। अब 1 से लेकर 25 तक क्या क्या वैल्यू है, तो शुरू में 1 2 3 4 5 यूज होगा टेस्ट के लिए, फिर ऐसे 5 से बीच की होगा टेस्ट के लिए अलग अलग। तो 5 डिफरेंट इंस्टेंस में आप अलग अलग तरीके की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं और 5 5 के स्लॉट में लेके काम कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इससे फायदा क्या हो रहा है, comparison of training tests split to cross validation. Advantage of training test split. This runs k times faster than leap on cross validation because k fold cross validation repeats the train training k times. Simple to examine the details results of the testing process. तो k times faster than the leap on mode, क्योंकि एक ही तक को शिफ्ट करता है तो उसमें एक ही डेटा यूज कर रहे थे जिसकी शिफ्टिंग करेंगे यूज। यहाँ पर आपके पास एक सर्टेन टैब मिल गया, जिस टैब से ये मिल गया कि आप इसको k टाइम्स में ही डेटा टेस्टिंग को रनिंग कर सकते हैं। सिंपल है यूज करने के अंदर, मोर एक्यूरेट है, एफिशिएंट है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो overcoming of overfitting, cross validation helps to prevent overfitting by providing a more robust estimate of the model's performance on unseen data। Model selection, ये जो है वो बेनिफिट्स हैं सारे के सारे आप ये कि अगर आप इसको यूज करने जा रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में उठाई थी वो क्या थी, वो ये थी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती थी। मतलब जब अननोन अनसीन या अननोन डेटा के लिए ये जाएगा मॉडल तो क्या होगा, है ना, ये चीज। इस चीज को खत्म करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन यूज किया है। मॉडल का सिलेक्शन, जो मॉडल के सिलेक्शन पे जा रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन कैन यूज टू कंपेयर डिफरेंट मॉडल एंड सेलेक्ट द वन दैट परफॉर्म्स द बेस्ट ऑन एवरेज।
मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट कर सकते हैं, पहले से टेस्ट कर लेंगे, पहले से पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं, तो इसकी मदद से कर सकते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये इंपॉर्टेंट। So cross validation can be used to optimize the hyperparameters of a model such as regularization parameter and such. Data efficiency increase कर सकते हैं. Cross validation allows to use a variable available data for both training and validation, making it more data efficient. अब बात करते हैं disadvantages. कौन कौन से disadvantages? कौन कौन से disadvantages हो सकते हैं, ये भी important है अगर हम यूज करें. Computation expensive, महंगा हो जाएगा. Cross validation can computation expensive, especially when the number of codes in large. जब ज्यादा large number of code use किए जाएंगे, टाइम बहुत कंज्यूम है. एक करेगा फिर दूसरे स्टेप के लिए करेगा, तीसरे स्टेप के लिए करेगा, डेफिनेटली टेक फॉर द वैलिडेशन टाइम. बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. अब ये चॉइस ऑफ नंबर ऑफ फोल्ड्स इन अ क्रॉस वैलिडेशन कैन इंपैक्ट द बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. Too few folds may result in a high variance, while too many folds may result in a high bias. तो अगर कम कर दिए तो कम करने पर हाई बाइस चला जाएगा, टू मेनी फोल्ड्स में रिजल्ट इन हाई बाइस में चला जाएगा, और अगर वही रिड्यूस कर दिए तो इफेक्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर बाइस वेरिएंस के अपने आप में एक बड़ा रीजन है, ये आपको देखना. तो इस तरीके से बहुत सारे वैलिडेशन के आपके तरीके हैं. आपको डेटा उठाइए, डेटा उठाने के बाद में करके देखिए तो वैलिडेशन इजीली टू जाए. ट्रेन सेट में फोल्ड में आप कर सकते हैं, और आपको इसका डेटा एग्जाम्पल ये कि आपको लर्न इनपुट क्रॉस वैलिडेशन करना चाहिए. ये फोल्ड ट्रेन सेटिंग देना पड़ेगा, फोल्ड देना पड़ेगा, देन इस करेंगे. तो ये लेटर ऑन पाइथन के बाद में सीख लेंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है. पर अभी इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में क्रॉस वैलिडेशन को क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया हो. तो कोई क्वेश्चन अगर इसमें है तो आप पूछ सकते हैं. ये जो आपका सेकेंड टॉपिक है, इसमें आगे आगे यूज करते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको इससे पिछले वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रॉस वैलिडेशन किया था. क्रॉस वैलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉडल को वेरीफाई करने के लिए, आपके मॉडल को ये बताने के लिए. तो जो क्रॉस वैलिडेशन आप करने जा रहे हैं, जो क्रॉस वैलिडेशन से एक्चुअली आपकी मॉडल की फिटनेस पता चलती है कि मॉडल हमारा एक्स्ट्रा एनवायरमेंट के लिए, अननोन डेटा के लिए फिट है या नहीं. So now coming on the next one, which is called as a dimensionality reduction. ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब कभी भी हम मशीन लर्निंग के लिए जाते हैं और हमारे पास में डेटा सेट अवेलेबल होता है, इस डेटा सेट पर हम काम जब कर रहे होते हैं तब यहाँ पर हम डायमेंशनल रिडक्शन को पहले जरूर प्रेफर करते हैं. तो जैसा डिस्कस किया गया, मशीन लर्निंग इज बेसिकली नथिंग बट फील्ड ऑफ दिस. तो प्रोडक्टिव मॉडलिंग इसमें की जाती है, आगे का फ्यूचर बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन आएगी तो इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा. Now coming on the most important point, which is the target. Dimensionality reduction is the process of reducing the number of features in data set while retaining as much information as possible. Dimensionality reduction जो है वो basically is process of feature of dimensions in data set while retaining as much information as possible. मतलब information जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बस उसकी जो dimensions हैं अलग अलग वो रिड्यूस होगा. तो just taking this one. This can be done by a variety of reasons, such as to reduce the complexity of a model, to improve the performance of a learning algorithm, or to make it easier to visualize the data. There are several techniques for the dimensional reductions, include principal component analysis. आप principal component analysis करके कर सकते हो. दूसरा मेथड ये यूज किया, ये देखिए ना प्रिंसिपल वाला PCA. इस मेथड से भी आप डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हो. सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ये भी यूज कर सकते हो. एंड लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस LD यूज. These techniques use different method of project load on the data onto the lower dimension space while preserving important information. So dimensional reduction is basically reducing number of features. Features को reduce करते हैं जो हमारे काम के लिए. अब ये हो क्या रहा है, सारा कहानी समझने की कोशिश करें, पूरी की पूरी स्टोरी है कहाँ. Just for an example, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन इसको लेट्स कनेक्ट विद द लाइफ एग्जाम्पल. आपको फॉर एन एग्जाम्पल एक कार परचेज करनी है. अब जब आप कार परचेज करने जा रहे हैं तो आपने कहा नहीं भाई मुझे कार के बारे में जानकारी दीजिए. अब वहां पर कोई एक नया बंदा है, उसने जानकारी के नाम पर सोचा कि आप सारी चीजें जानना चाहते हैं,
तो उसने क्या किया, आपको पूरी की पूरी कार का एंटर मारा और सारा का सारा डेटा सेट डाउनलोड कर दिया, जिसमें अब क्या क्या था, जिसमें कार का कलर, कार की बॉडी टाइप, कितने की उसमें शीट यूज की गई है, इंजन का वेट कितना है, इंजन की थिकनेस कितनी है, वर्ड्स कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, सीट की हाइट कितनी है, सीट कितनी होती है, एवरीथिंग, कौन सा मटेरियल, कौन सा कंपोनेंट, ये सारी चीजों उसके डेटा शीट में अवेलेबल है। अब जरा मान के चलिए कि ये डाटा शीट आपकी काम की होगी, अगर सपोज करो आपको कार खरीदनी है, तो आपको इंजन की विड्थ, हाइट और इस चीज से फर्क पड़ेगा कि इंजन के अंदर जो बेसिकली चैम्बर यूज किए जा रहे हैं, ऑयल चैम्बर यूज किए जा रहे हैं, उनकी थिकनेस कितनी है, सबसे फर्क पड़ेगा। अगर आपको कार परचेज कार करनी है तो आपको सिंपल कुछ फीचर से काम करेगा, आपको जाएगा कि कार का कलर क्या है, कार की कंपनी कौन सी है, इसका माइलेज कैसा है, इसका एसी कैसा है, इसका कंफर्ट कैसा है, इसका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके काम की चीजें हैं। तो जब आप इन चीजों पे काम करेंगे, व्हेन यू वर्किंग ऑन दिस डायरेक्शन, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। अब जब डेटा सेट किसी से हमने मांगा कार का, उसमें उठा के पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया, इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी हमारे काम की भी होंगी, है ना। जैसे उसके बारे में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन तक दे दी कि वो जो पेंट होता है, पेंट की कोटिंग किस मटेरियल की जाती है। अब सपोज यू आर लुकिंग फॉर रेड, ग्रीन, ब्लैक कलर, और बस ये चाह रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी लॉन्ग रहे, लॉन्ग टर्म तक ये सस्टेन करे, तो ये आपके लिए ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, इन प्रॉब्लम में आप फीचर्स को रिड्यूस करते हैं, ये मेथड्स आपको बताए गए। तो फीचर्स को रिड्यूस करने में अपने आप में यही प्रोसेस होता है, प्रिजर्विंग एसेंशियल the curse of dimensionality in a common problem in machine learning where the performance of model deteriorates, a number of the feature increases. This is because of the complexity of the model increases with the number of features and it becomes more difficult to find a good solution. जरूरत से ज्यादा फीचर्स दे देंगे तो आदमी पता चला जिसको सिर्फ कलर से मतलब था, गाड़ी का रंग लेने आया था या गाड़ी की माइलेज को लेने आया था, उसको अननेसेसरी अपने गाड़ी के वेट के बारे में बता दिया, और वो घूम गया कि इतनी भारी गाड़ी लेनी थी, सस्ती गाड़ी लेनी है, हल्की गाड़ी लेनी है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें उसको अननेसेसरी ट्रबलसम सिचुएशन में ले जाएंगी, जिस रीजन के लिए चाहिए। उसको मतलब है बूट स्पेस से, उसको मतलब है कार की स्पीड से, उसको मतलब है इसके माइलेज से कि कितना माइलेज दे देती है, ये सारी चीजों से उनको मतलब है। लेकिन उनको चीज से मतलब नहीं है कि इंजन का वेट कितना है, उससे मतलब नहीं है ये सारी चीजें। So dimensional reduction can help to mitigate these problems by reducing the complexity of a model and improving its generalized performance. There are two main approaches for the dimensional reduction. दो तरीके यूज करते हैं, तो फीचर सिलेक्शन, कोई भी आप फीचर इस पर बात कर रहे हैं आप बोले से,